Good morning, students. In my last lecture, I told you about the heartbeat, right? This heartbeat, I've told you about systole, contraction, and diastole, right? So today we'll see this rate of heart. You can go through this, that these are the animals and how much is their heartbeat. Okay. So this is written, smaller the size, faster is the heart rate. जितना छोटा होता है एनिमल तो उतनी उसकी हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट जो होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, बिकॉज इट लूजेज, द आंसर इज गिवन बिकॉज दिस इज बिकॉज स्मॉलर द एनिमल द मोर इज द लॉस, मोर इट लूजेज इट्स बॉडी हीट ड्यू टू हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो. क्योंकि उसकी बॉडी से क्या होती है, उससे ज़्यादा, मतलब जो आपका सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मोर ऑफ द हीट इज रिलीज फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी. Okay, that is why the heartbeat is more. Okay, secondly, the young growing stages such as human baby have higher metabolism. फिर साथ में जो बेबी होता है, जो ह्यूमन बेबी है, when it is very means small infant, the heartbeat is very high because the metabolism or the growth rate in the small baby, it is very much faster. So due to that the heartbeat is faster. Therefore, the faster heartbeat keeps the supply and take off of the metabolic substances in a right quantities. है ना, छोटा बच्चा जो होता है तो उसमें जो भी metabolic activities हो रही होती हैं तो उसका जो waste होता है या intake uptake जो भी हो रहा है तो that is taken very fast by the blood. That is why the heart beats faster, right? You can go through the paragraph, you will understand it. Now the important heading is pacemaker. Okay, now the impulse or the command which starts the heartbeat arises from the pacemaker, and pacemaker is also called sinoatrial node. So ये pacemaker जो होता है ना, this only initiates the heartbeat in your heart. Okay, and this is also called sinoatrial node, SAN. You can see it is located in the walls of a right auricle. Right auricle, here this is the diagram for you. So this is SAN node. Can you see? SAN node आपका ये है, ये आपका पूरा right auricle है, right? And in this right auricle, this is SAN, right atrium they have told, and this is AVN, atrioventricular node, AVN. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. तो यहाँ से एक्चुअली आपकी हार्ट बीट जो होती है वो जनरेट होती है, एंड आफ्टर जनरेटिंग इट मूव्स हियर, और यहाँ से ये मूव करके इधर जाती है टू द वेंट्रिकल्स. आपके नीचे वेंट्रिकल्स हैं एंड यू कैन सी दिस येलो लाइन्स. कैन यू सी? सो आपके नीचे वेंट्रिकल हैं, दिस इज मार्क्ड एज राइट वेंट्रिकल, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, यहाँ पे जो खुलेगा, एंड दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व आफ्टर ओपनिंग मीन्स दिस इज द एवीएन नोड, एंड एवीएन से आपका यहाँ पे द इम्पल्सेज आर कमिंग, एंड आफ्टर द इम्पल्स कमिंग इट विल मूव टू द दिस होल हार्ट. है ना, तो यहाँ से वेंट्रिकल्स में आ गया वो, और वेंट्रिकल से होता हुआ दिस इज गोइंग टू द left ventricle also and to the left atrium. This is the left atrium. Okay, so see the diagram, you'll come to know. Anyway, I'll describe this. First is your pacemaker. So pacemaker is also called SAN, that is sinoatrial node. It is located on the walls of a right atrium. This impulse is related to the वेंट्रिकल्स विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स. अभी ये क्या लिख रहे हैं कि आपका स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स जो है ना, वहाँ से ये स्पेशल कंडक्टिंग फाइबर्स ये हैं आपके, विच कन्वे होल ऑफ द हार्ट बीट टू द, जो आपकी इम्पल्स होती है उसको पूरे हार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. Now these special fibers, this pacemaker is present near the opening of a superior vena cava, while the AV node is found near the intra-auricular septum near the tricuspid valve. So what they are saying, this is superior vena cava. Again if you remember, I have told you superior vena cava क्या होता है, जो आपकी बॉडी से ब्लड को क्या कर रहा है, ऊपर लेके आता है, and it is received by the right auricle. The whole impure blood of your body is received by the auricle by superior vena cava. तो जहाँ पे superior vena cava होता है, there only you can see this this SAN node is there. और जहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ये वाला, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के ही पास यू कैन सी दैट AVN नोड इज़ देयर. यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया और इसी के पास AVN है. ठीक है, और यहाँ पे आपका सुपीरियर वेना केवा ने अंदर आना है, तो वहीं पे आपका SAN नोड है. गॉट इट? दीज येलो लोकेशन शुड बी क्लियर.
Now, this septum, bundle of his, then found near the intra-auricular septum near the tricuspid wall. A bundle of muscles called bundle of his begin from AVN and extend to the intraventricular septum. Now, AVN, again I am telling you, this is AVN, आर्शियोवेंट्रिकुलर नोड, इसका फुल फॉर्म ये दिया हुआ है. एंड AVN आपका दिस इज हेयर, एंड दिस फ्रॉम हेयर there is a special fibers which is called bundle of his. You have to remember this bundle of his. और ये bundle of his जो fibers होते हैं ना, ये पूरे ही heart में क्या करते हैं, they are conducting the impulse of the heart. Okay. Now bundle of his, you underline this in your book also. This is bundle of his, this is very important. Consists the branches of the fibers running along the wall of a ventricle called Purkinje fibers, है ना. तो ये जो bundle of his होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ fibers और रन कर रहे होते हैं, और उन fibers को कहा जाता है Purkinje fibers. Okay, so this comes in exam. What is SAN, what is AVN, and what is Purkinje fibers, bundle of his. So this should be clear. Okay, bundle of his is the means it is having the branches which are having the fibers like structure, they are called the Purkinje fibers. All these together form a system which creates an impulse and conduct it to the every part of the heart, है ना. तो ये जो आपके Purkinje fibers यहाँ से आ रहे हैं, या bundle of his जो है, ये आके क्या करता है, it sends the impulse to the whole heart, right. I hope this is clear. If it's not clear, please do ask me. Okay. Now, sometimes the pacemaker becomes faulty, causing the heart trouble. An artificial pacemaker may be fixed in the heart force of such a person. Now, what happens? You might have heard many times that in some heart patients there is a pacemaker is placed in their heart. तो पेसमेकर इसके लगाया जाता है कि कभी कभी क्या होता है, पेसमेकर आपका फॉल्टी हो जाता है. फॉल्टी मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. तो इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट विल नॉट बी एबल टू कन्वे द इम्पल्स टू द होल हार्ट, और इससे आपको हार्ट ट्रबल हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इफ़ द पेसमेकर इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग, दिस इज़ पेसमेकर, ओके, SAN, तो ये अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो व्हाट हैपन्स, द आर्टिफिशियल पेसमेकर इज़ ट्रांसप्लांटेड इन द हार्ट. ओके, तो ये निकाल के क्या वो इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, ओनली द अदर दिस पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर इज प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल वन. ओके. Now you are having blood vessels. This is again very important because if you turn your pages, you will see many times the questions have come. I'll tell you, these are the questions regarding this. Here, can you see this? These are the questions in the exercise that identify the blood vessels A, B, C. This has come most of the times in the exam, and this is the diagram. Most of the times means it is very much sure 99% this question comes in your exams. Okay, so they will give you draw 3 type of blood vessels and you have to identify कि तीनों कौन सी हैं, और साथ में आपको उसकी characteristics भी देखने पड़ेंगे. So blood vessels, these are the branch tube extending from the heart. आपके हार्ट से निकल रही हैं ये, और सारे पार्ट्स में जा रहे हैं बॉडी के. They are of 3 kind, just underline them: arteries, capillaries and veins. Arteries are the blood vessel which carry the blood from the heart towards any organ. Got it? Just underline this again, from the heart towards any organ. आर्टरी एक ऐसा आपका ब्लड वेसल है जो क्या करता है, इट टेक्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आपके हार्ट से लेके जाएगा और बॉडी की तरफ जाएगा. गॉट माई पॉइंट. सो आर्टरी क्या करती है, प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द हार्ट एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स द होल बॉडी, राइट. सो अवे फ्रॉम द हार्ट, यू कैन से अवे फ्रॉम द हार्ट. Now there are some characteristics of the arteries. ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं, you have to learn them properly. Now first one is your thick muscular walls. इसकी walls काफ़ी muscular होती हैं, and then it is having a narrow lumen. Lumen का मतलब होता है the central bore. Central bore means this is called the central bore. जो बीच की जगह खाली है, ये lumen दिख रहा है आपको, ये artery है. और ये इसका बाहर का जो area है ये काफ़ी thick होता है. जो wall होती है this is very much thick and lumen is in the center. You can see it. और ये आपको आर्टरी है और इधर इन्होंने वेन दिखाई है. तो वेन देखिए, इसकी बाहर की कवर जो है इट इज़ वेरी थिन एंड द ल्यूमेन इज़ वेरी बिग.
ओके ये जो बीच की खाली जगह ये बहुत सारी है, इसकी ये वाली एरिया जो है ये काफ़ी मोटी है वॉल, और जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। ओके सो यू हैव टू अगेन सी द लेबलिंग। एक्सटर्नल लेयर, इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं। सो 3 नेम्स आर गिवन, यू मोस्टली हैव टू राइट दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना इन द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, राइट। देन सेकेंड वन इज द मिडिल लेयर, इट इज़ स्मूथ मसल से बनी है एंड इलास्टिक फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। You will write tunica media, just mind it that this tunica externa, tunica media, right? And then third one is your tunica interna. Interna means the internal one, ठीक है, ये आपकी सबसे बाहर वाली है, दिस इज द एक्सटर्नल वन, ये पिंक, लाइट पिंक में। देन यू आर हैविंग दिस बीच में ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका मीडिया, एंड जो अंदर दिख रहा है आपको लाइट पिंक अगेन, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथीलियम। और जो बीच का खाली स्पेस है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ये आपका पाइप है, आप ये समझ लीजिए, और पाइप का इन्होंने क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखाया हुआ है। तो दीज आर द ब्लड वेसल्स, ओके, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड ही बहेगा अंदर। तो आपका जो आर्टरीज होती है ना, ये यहाँ पे काफ़ी इसका ल्यूमेन छोटा होता है और इसकी वॉल्स मोटी होती हैं। जो वेन्स होती हैं दे आर हैविंग थिन वॉल्स आउटसाइड एंड द ल्यूमेन इज ऑल्सो बिग। सो यू हैव टू सी दिस ऑल द लेबलिंग एंड प्लीज draw it in your copies and practice it, okay? Now I was telling you that इसमें ल्यूमेन जो होता है आपके आर्टरीज में ये बहुत ही इसमें नैरो होता है। then blood in it flows in spurts which corresponds to the ventricular contraction in the hearts। अच्छा ये this word is there, spurts, spurts का मतलब होता है कि ब्लड इसमें रुक रुक के बहता है, रुक रुक के मतलब बहेगा फिर रुकेगा फिर बहेगा, एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द आर्टरीज। व्हाट हैपन, द ब्लड इज मूविंग, आर्टरीज में कहाँ से आ रहा है ब्लड, हार्ट से आ रहा है और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलता है एंड इट कम्स टू द आर्टरीज, तो वहाँ से आपको पता है, अभी मैंने पीछे बताया था दैट देयर इज सिस्टोल एंड डायस्टोल, बार बार आपका सिस्टोल और डायस्टोल होता रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपका हार्ट जो है वो बार बार पंप कर रहा है। तो बार बार पंप करेगा तो क्या होगा, आर्टरीज में भी क्या होगा, ब्लड रुक रुक के बहेगा। मतलब एक बार पंप हुआ यहाँ से हार्ट से तो ब्लड बाहर को निकल गया, फिर थोड़ी देर तो स्टॉप होएगा और फिर दोबारा से हार्ट ने पंप करना है। तो बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ा एक बार प्रेशर तेज़ आएगा, एक बार कम आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पर्ट्स, है ना। स्पर्ट्स मीन्स रुक रुक के बहना, है ना। तो इन आर्टरीज द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग कंटिन्यूसली इन अ स्मूथ फ्लो, इंस्टेड इट इज फ्लोइंग इन स्पर्ट्स, सो दैट इट इज़ ड्यू टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज आपका लास्ट जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, व्हेन इट इज़ गिविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, it is doing it time to time, है ना। as you have, I have told you the time period of systole diastole, that was systole of ventricles was 0.30 seconds। तो 0.30 seconds में मतलब क्या होगा कि बार बार बीच बीच में रुक रुक के ब्लड आता रहेगा। ओके, now next one is your vein। vein आपको diagram is already clear, I hope। now vein is a vessel which carries the blood away from the organs towards the heart। you see this last line, it is away from the organ से ये दूर लेके जाएगी एंड टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि आपके हार्ट से अवे लेके जा रही थी और ऑर्गन्स की तरफ लेके जा रही थी। यहाँ पे आप देखिए, यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम द ऑर्गन्स। ये वेन्स जो होती है ना, ऑर्गन से लेके आती है और हार्ट में लेके जाती है ब्लड को। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स फिर इसके कैसे हैं? थिन मस्कुलर वॉल, यहाँ लिखा हुआ था थिक मस्कुलर वॉल्स, यहाँ पे थिन मस्कुलर वॉल्स लिखा हुआ है फॉर द वेन्स। इसका ल्यूमेन क्या है, यहाँ पे इसका नैरो था, इसका वाइड ल्यूमेन है, ठीक है। द ब्लड फ्लोज यूनिफॉर्मली, द ब्लड यहाँ पे दिस फ्लोज यूनिफॉर्मली, राइट, मतलब देयर इज नो स्टॉप एंड ब्रेक इन द ब्लड फ्लो। नाउ इट कंटेन्स अ थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्व्स which whose opening faces in the direction of a heart. These valves prevent the backflow of the blood. Now this is very important point which is not present in the arteries. In this this veins, you are having these valves,
And valves, I have told you when I was explaining bicuspid and tricuspid valve, I told you that valves regulate only unidirectional flow of the things. अगर valve word कहीं पर भी यूज़ हो रहा है तो सिर्फ आपका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, एक ही डायरेक्शन में चीज़ें फ्लो करेंगी. तो सिमिलरली वी आर हैविंग valve in the veins, they are not in the arteries. तो आर्टरीज में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड को कहीं रोकना ही नहीं है, वो अगर ऑर्गन्स में जा रहा है तो लेट इट गो, राइट. बट वेन्स क्या कर रही हैं? दे आर ब्रिंगिंग बैक द ब्लड टू द हार्ट. तो जब हार्ट में आ रहा होता है ना ब्लड, मान लो द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम योर लेग्स, योर फीट्स टूवर्ड्स द हार्ट, then the gravitational force acts on it and maybe your blood can go back down. So इसलिए veins में क्या लगे होते हैं? valves लगे होते हैं कि blood आपका एक बार अगर ऊपर आ गया है heart की तरफ तो it will remain upper side only, it will not move downwards. क्योंकि जैसे ही blood ऊपर आएगा तो veins का जो flap है, बीच में ये जो flaps आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये flaps क्या होंगे? बंद हो जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट. जैसे ही ब्लड अंदर आ रहा है, ये ब्लड आगे को चला गया है, ऊपर ऊपर हार्ट होगा, तो हार्ट की साइड को जैसे ही जाता है तो ये आपके फ्लैप्स बंद हो जाते हैं, सो दैट इट डज नॉट कम डाउन बैक. ओके. तो आर्टरीज में ब्लड को जहाँ जाना है, लेट इट गो, इट हैज़ टू गो टू डिफरेंट ऑर्गन्स. बट इन द वेन्स द ब्लड हैज़ टू कम बैक टू द हार्ट. तो वेन्स ने तो सारी जगह से कलेक्ट करके उसको लेके आना है, इसलिए इसमें क्या होते हैं? वॉल्व्स लगे होते हैं कि जहाँ पर से भी ब्लड आ जाए तो वो फिर वापस ना जा सके. एंड द वॉल्व्स आर क्लोज्ड आफ्टर द ब्लड हैज़ एंटर्ड. गॉट माई पॉइंट? आई होप इट्स क्लियर. नाउ द स्मॉलेस्ट और द फाइनल ब्रांच ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड आर्ट्रियोल. आर्टरी क्या होती है ना, उतनी ही मोटी आर्टरी पूरे बॉडी में नहीं फ्लो करती है. आर्टरी उसके बाद फिर से सब डिवाइड होती है और डिवाइड करके आर्ट्रियोल्स बनाती है. देन द आर्ट्रियोल्स आर हाईली मस्कुलर एंड कैन चेंज देयर डायमीटर मैनी फोल्ड्स. और आर्टरीज जो होती हैं इनमें काफ़ी सारी मसल्स होती हैं और मस्कुलर होती हैं, एंड ड्यू टू दैट दे कैन ऑल्सो चेंज देयर डायमीटर. द आर्ट्रियोल ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज. फिर ये और आगे जाके मतलब शुरू में आर्टरी आएगी, आर्टरी विल डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स एंड आर्ट्रियोल्स विल फाइनली डिवाइड इनटू कैपिलरीज. Now for today I am taking this much only. Please go through the diagram of this. Then pacemaker is very necessary, important, and where the Purkinje fiber bundle of His is present, AVN node, SAN. Then you are having the difference between arteries and veins. You also have the third difference, the capillaries and characteristic, that I'll take in my next video. So meanwhile please go through the text. Okay, if you are having any problem just do tell me on my personal number. Thank you.